Hello, good morning student. Welcome all of you, and today we will discuss about the combination of error. So we already discussed about the what happened when two quantities are added or subtracted. Then their absolute error is added up. And we discussed that if a quantity A and the error in measurement of A is del A, another quantity B and the error in the measurement of B is del B. Del A and del B are the absolute errors, and A and B are the true value of that quantities. If we suppose that if these two quantities are added up, then the addition of A plus B is denoted by Z. So what will be error in Z? What will be the addition of two quantities? And what about the errors? So we denoted that del Z is the error. Del Z is the error in the measurement of Z, which occurred from the addition of A plus B. So we want to calculate the error in addition or subtraction. So this is del Z is what? Error in sum or error in addition. So this is, we found that this is del A plus del B. So we conclude that the error in sum or addition of two quantities, the error in sum or addition of two quantities is equal to the sum of absolute errors of individual quantities. तो इसका जो error है और इसका जो error है, अगर दोनों के absolute errors को हम ऐड कर देंगे, then हमें उनका जो सम है उसमें, तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि अगर दोनों के एब्सोल्यूट एरर को ऐड करें, सो वी फाउंड एरर इन सम और डिफरेंस. सिमिलरली अगर यहां पे a माइनस b होता, z इक्वल्स टू a माइनस b, डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, चाहे सम हो या डिफरेंस हो, एरर इज ऑलवेज एडेड अप. डिफरेंस के केस में भी डेल z क्या है? डेल z इस z का एरर है. कौन सा एरर? एब्सोल्यूट एरर. So what is absolute error of difference of two quantities? Then if we subtract two quantities, then their errors added up. So in case of addition or subtraction, the absolute error of two quantities are always added up. Whatever we add two quantities or we can subtract. So finally, we conclude that in addition or subtraction of two quantities, their errors are always, their absolute errors are always added up. So अगर दो क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनके एब्सोल्यूट एरर आपस में ऐड होंगे, व्हाटएवर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमने निकाल लिया था ऑलरेडी. अब बात करते हैं एरर ऑफ ए प्रोडक्ट. So वही सेम चीजें डिस्कस करेंगे. If A is a physical quantity and the del A is the और we can अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. Del A is what? Absolute error in A. Del B is what? Absolute error in B. Similarly, del Z is the absolute error in Z. What is Z? Z is the, now we are going to discuss about the error in product. So what is Z? Z is equals to A into B now. So if हमें एरर कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट को हमने किससे डिनोट कर दिया? Z से. तो प्रोडक्ट में एरर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेल Z. तो हमारा वही टेक्निक है. क्या टेक्निक है? जहां Z है, जहां A है, जहां B है, हम उनको एरर के टर्म्स में पुट कर देते हैं. तो Z को हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं? एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर. इसी तरह से A को लिख देंगे A प्लस माइनस डेल A. एरर की टर्म्स में हमने इसको
b प्लस माइनस डेल बी। सो हमने ये क्वांटिटीज को जैसे ये क्या है मेजर्ड, तो जब हम z को मेजर करते हैं तो उसमें प्लस माइनस कुछ एरर होगा, वो जो हमें फाइंड आउट करना है। a का हमने ऑलरेडी मेजरमेंट कर चुके हैं, डेल a हमें पता है a में कितना एरर आया है, प्लस माइनस का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। सिमिलरली हमने b को भी एरर के साथ पुट कर दिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ से इसमें से z कॉमन ले लेते हैं। हमने यहाँ से z कॉमन लिया, ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z। इसमें से हमने a कॉमन ले लिया a, और ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a। इधर से b कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहे लगा दीजिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होता है। 1 प्लस माइनस डेल v अपॉन b, ये हमने इसको पुट कर लिया। a इंटू b को एक साथ रख लेते हैं, तो ये हो गया z 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इक्वल्स टू a इंटू b 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। इस b को इसके साथ लिख लिया है, बाकी टर्म्स एज इट इज हैं। z इक्वल्स टू होता है a इंटू b, तो z इक्वल्स टू a इंटू b कैंसिल आउट हो गया ये आपस में। अब इसको इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो पहले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये सेकंड वाली टर्म को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। सो इधर तो आ गया 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इक्वल्स टू, अब पहले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 इंटू 1 1 आ गया, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल b अपॉन b, फिर डेल a अपॉन a को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे करेंगे, तो प्लस माइनस डेल a अपॉन a एंड प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू डेल b अपॉन b। तो चार टर्म्स आएंगी, पहले 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई किया डेल b अपॉन b आ गया, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया डेल a अपॉन, और फिर अब देखिए ये जो टर्म है लास्ट वाला जो टर्म है ये वाला 1 से 1 तो कैंसिल हो गया आमने सामने, ठीक है। ये जो लास्ट वाला टर्म है तो यहां लिख लेते हैं इसको टर्म डेल a अपॉन a एंड डेल b अपॉन b is very small, is very small, therefore we can neglect this term। ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन दे देना है। ऐसा क्यों हमने किया है, क्यों, यहां देखिए डेल a क्या है, एरर इन a क्या है, एक्चुअल वैल्यू। अब हम जानते हैं कि एक्चुअल वैल्यू अगर हम सपोज कोई मास को मेजर कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू 1 kg है, तो उसमें एरर कितना है, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। अब 1 kg में 1 kg एरर तो आ नहीं सकता, 1 kg को ही मेजर कर रहे हैं और 1 kg एरर आ जाएगा, जीरो दिखाएगा वो, तो फिर कोई मेजरमेंट हुआ ही नहीं। तो हम ये मानते हैं कि जो एरर है वो एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में स्मॉल होगा। डेल a 10 ग्राम होगा और ये 10 kg होगा, है ना, तो एरर हमेशा स्मॉल होता है। तो न्यूमरेटर तो स्मॉल है और डिनोमिनेटर लार्ज है, तो ये डेल a अपॉन a कैसा वैल्यू है, स्मॉल। डेल b अपॉन b कैसा वैल्यू है, ये भी स्मॉल। तो जब दो स्मॉल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो और स्मॉल वैल्यू मिलती है, वेरी स्मॉल। जैसे एग्जांपल देखिए 0.2 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से स्मॉल वैल्यू मिलेगा, है ना, या फिर 0.2 0.5 कितना हो गया, 0.1 0.1। अब 0.1 देखिए 0.2 से भी स्मॉल है और 0.5 से भी स्मॉल है। तो जब दो स्मॉल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और स्मॉल वैल्यू हमें मिलती है। जैसे आप 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें, 1/8 दोनों से छोटा मिलेगा, है ना। तो हमने इस टर्म को इग्नोर नहीं किया, ये भी हालांकि स्मॉल है बट इसका इंपॉर्टेंस है, ये भी स्मॉल है, इसको भी इग्नोर नहीं किया, हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बहुत स्मॉल टर्म्स का मल्टीप्लाई है और वो और ज्यादा स्मॉल हो जाता है, तो स्पेशली हमने वर्ड लिखा है वेरी स्मॉल। तो स्मॉल तो ये भी है, स्मॉल तो ये भी है, बट ये और ज्यादा स्मॉल है, तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। इतना छोटा टर्म हम लिखे ना लिखे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये बन गया प्लस माइनस डेल z अपॉन z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल a वाली टर्म को पहले लिख रहे हैं प्लस माइनस डेल b अपॉन b। अब आप चाहें तो प्लस माइनस कॉमन लेके इसको सीधा लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल z अपॉन z और इसको प्लस माइनस डेल a अपॉन a और प्लस डेल b अपॉन b। प्लस माइनस भी कैंसिल हो सकता है, तो डेल z अपॉन z दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस कैंसिल कर दिया हमने डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। दिस इज द रिजल्ट। सो यहां से रिजल्ट आपको क्या मिला है? यहां से रिजल्ट हमें ये मिला है कि रिलेटिव एरर इन z, this is what relative error upon actual value, relative error in z, or we can say that relative error in the product of two quantities। अब z बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज a एंड b, सेम थिंग है, क्योंकि z को हमने क्या अज्यूम किया है, z is the product of a and b, so we can say that the relative error in the multiplication or product of two quantities is equal to sum of relative error in one quantity and sum of relative error in one quantity and relative error in second quantity। So error यहाँ भी ऐड ही होंगी, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर्स ऐड होती है, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रिजल्ट रहेगा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रहेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर बात होती है, डेल z इक्वल्स टू डेल a प्लस डेल b। हम क्या बोलेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन सी एरर ऐड होती है, एब्सोल्यूट एरर आर एडेड अप, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रिलेटिव एरर्स आर एडेड अप। तो जो हमने बात बोली थी कि एरर्स हमेशा ऐड होती है, वो बात बिल्कुल ठीक है, एरर्स हमेशा ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, मल्टीप्लाई नहीं होंगी, डिवाइड नहीं होंगी, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन सी एरर्स ऐड होंगी, एब्सोल्यूट एरर्स, डेल z इक्वल्स टू डेल a प्लस डेल b, नीचे वाली टर्म्स नहीं होंगी। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कौन सी एरर्स ऐड होंगी, रिलेटिव एरर्स। ये रिलेटिव एरर है, ठीक है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं रिलेटिव एरर क्या होता है, एरर इन रिलेशन टू ट्रू वैल्यू। तो ये एरर है और ये ट्रू वैल्यू है। तो ये कंक्लूजन है, ये किसका कंक्लूजन आ चुका है, एरर ऑफ ए प्रोडक्ट। ओके, अब हम डिवीजन की बात कर लेते हैं। डिवीजन में सेम चीज चलेगी, सेम डेल ए क्या है, एब्सोल्यूट, सब में आपको ये चीज तो लिखनी है, बस यहां चेंज कर देते हैं। यहां क्या चेंज करेंगे, अब यहां हम कर देते हैं a अपॉन b, क्योंकि अब हमें किसका एरर फाइंड आउट करना है, डिवीजन का। तो हमने क्या बोल दिया, अब z मल्टीप्लिकेशन नहीं, अब z क्या है, अब z डिवीजन है, किसका डिवीजन, a अपॉन b। ओके, अब हम z को, a को और b को एरर्स की टर्म्स में लिख देते हैं। देखिए, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है, मान लो कोई क्वांटिटी है x, तो उसको प्लस माइनस डेल x ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर हम इसको बात करें, दिस इज x डैश, तो x डैश क्या है, मेजर्ड वैल्यू, x क्या है, ट्रू वैल्यू, प्लस माइनस डेल x क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो जब भी किसी क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू लिखते हैं, एब्सोल्यूट एरर की टर्म्स में लिखते हैं ऑलवेज, रिलेटिव एरर की टर्म्स में किसी वैल्यू नहीं रखते। तो z का, a का, b का वैल्यू रख देते हैं। किसकी फॉर्म में रखना पड़ेगा, इस फॉर्म प्लस माइनस जैसे हमने यहां लिखा था वैसे। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको चलो रख कर देते हैं इधर से, और यहां तक तो ठीक है, चल जाएगा काम। अब a का वैल्यू रख दिया, डिवाइडेड बाय, अब किसका वैल्यू रखेंगे, b प्लस माइनस डेल b। ओके, a का वैल्यू रख दिया a की जगह, b का वैल्यू b की जगह रख दिया, एरर की टर्म्स में रख दिया। कॉमन ले लेते हैं, सेम z कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z। इधर से ऊपर से क्या कॉमन आ गया, a क्या बन गया, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a। इधर से क्या कॉमन आ गया, नीचे से b, a क्या बन गया, 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। a अपॉन b से z कैंसिल कर सकते हैं,
क्योंकि z इक्वल्स टू a अपॉन b, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पे ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b पावर -1। ऐसा लिखा जा सकता है। ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है अगर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब यहां पे एक आपको नया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है और कैसे अप्लाई करते हैं? एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी बनाता है। मैथमेटिक्स में आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाना चाहते हैं तो पहले हम इसको बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है उसको थोड़ा सा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं पर यहां लगाना है तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है पहले इसको बात कर लेते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम होता है 1 प्लस x की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस nx प्लस n इंटू n प्लस 1। चलिए आगे की टर्म मत लिखिए नहीं तो और नई नई चीजें आ जाएंगी। इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 2। अब आप ये पूछेंगे फैक्टोरियल 2 क्या होता है तो फिलहाल हम क्या करते हैं और x स्क्वायर, फिर ऐसे ही n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो फिलहाल अभी आपको मैथ्स में पढ़ लेंगे फैक्टोरियल क्या होता है इसको छोड़ देते हैं। तो अभी हम इतना समझ लेते हैं कि 1 प्लस x की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस nx। और भी टर्म है आगे लेकिन ये सिर्फ कब लिख सकते हैं जब x इज लेस देन 1, x इज वेरी वेरी लेस देन 1 तभी लिख सकते हैं। अभी मैं समझा दूंगा आपको कैसे। अच्छा x अगर बहुत छोटा है तो यहां तो चलो ठीक है, आगे की टर्म में x स्क्वायर आता है। अगर x ऑलरेडी छोटा है उसका स्क्वायर करेंगे और स्मॉल वैल्यू आएगा, x क्यूब और स्मॉल आता है तो हम जो फर्दर टर्म है उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत स्मॉल वैल्यूज देंगी तो हम ये दो ही टर्म ले लेते हैं। अदरवाइज ये जो सीरीज है इनफिनिटी तक चलती है ऐसे, ठीक है। लेकिन अभी हमारे लिए क्या है 1 प्लस x की पावर n को बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस nx। लेकिन कंडीशन क्या है x स्मॉल होना चाहिए तभी। तो यहाँ 1 प्लस x, क्या ये x स्मॉल है? x की जगह क्या है डेल b अपॉन b, ये तो स्मॉल वैल्यू, क्यों ऊपर तो एरर है नीचे एक्चुअल वैल्यू। यहाँ बाइनोमियल लगा सकते हैं क्या? यस लगा सकते हैं। अच्छा अगर एक से बड़ा होगा तो क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। मान लो x का वैल्यू है 2, सपोज एक से बड़ा, ठीक है x का वैल्यू 2 है, ओके। तो यहां पुट कर दिया हमने 1 प्लस 2 की पावर स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर n का वैल्यू 2 लेते हैं। अब ये क्या आएगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 प्लस nx, n का वैल्यू कितना है या इसको ले लो 3, ताकि x का वैल्यू हमने कितना लिया है 3 और n का वैल्यू कितना लिया है 2। बाइनोमियल से देखते हैं क्या आंसर आता है 1 प्लस nx, तो 1 तो लिख दिया प्लस n कितना है 2 और x कितना है 3, तो ये कितना आंसर आएगा 1 प्लस 6 7। ये तो आंसर ही गलत है। यहां से हमें क्या पता लगता है कि अगर x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है बाइनोमियल नहीं लगेगा। x का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है बाइनोमियल काम नहीं करेगा। कब करेगा? सिर्फ x का वैल्यू लेस देन 1 है तो करेगा। अच्छा लेस देन 1 है तो करता है कि देखते हैं। मान लो 1 प्लस 0.1, अब हमने x का वैल्यू कितना ले लिया 0.1, ठीक है। बहुत ज्यादा स्मॉल लेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन जितना ज्यादा स्मॉल होगा बाइनोमियल से उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। देख लेते हैं 1 प्लस का स्क्वायर करके देख लेते हैं। n का वैल्यू कितना लिया है 2, n का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0.1, 1 प्लस। अब इसका बाइनोमियल से आंसर क्या आता है 1 प्लस nx, n का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू 0.1, कितना आएगा 1.2। मैथमेटिकली करके देखते हैं कितना आता है 1.1 का स्क्वायर कितना आता है, ठीक है सही आंसर आ रहा है। ये किससे निकाला बाइनोमियल से, ये किससे निकाला मैथमेटिक्स से, दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर दिया। यहां मैथमेटिक्स से आंसर निकालते हैं तो क्या आता है 1 प्लस 3 मतलब 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। यहां मैच नहीं करता, यहां मैच करता है। और छोटा होगा और एग्जैक्ट आएगा,
अभी तो x का वैल्यू हमने 0.1 ही लिया है, हमने क्या लिखा है वेरी वेरी स्मॉल। तो बाइनोमियल अप्लाई होता है, कहां अप्लाई होता है, जहां पे x का वैल्यू 1 से लेस है। हर जगह नहीं लगाना है, आप बंद करें, ठीक है। जहां पे x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है वहां नहीं लगेगा। और ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को इजी बना देता है। कैसे? जैसे किसी ने आपसे पूछा कि बताइए 1 प्लस 0.994 या 0.00094 ऐसा ले लो की पावर 99 कितना होता है बताओ। मैथमेटिक्स से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाइनोमियल से तुरंत हो जाएगा। 1 प्लस nx, 1 प्लस nx ही तो पढ़ना है। इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, बड़ा इजी। अभी आप मैथमेटिक्स में और इसके यूज देखेंगे तो कितनी बड़ी पावर्स को 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं बाइनोमियल की हेल्प से। लेकिन क्या देखना है, ये वैल्यू कैसा होना चाहिए, लेस देन 1, तभी लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। नहीं है लेस देन 1 तो बना लो, है ना। आप आगे रीजनिंग वाले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आप इसको बना सकते हैं, है ना। जैसे आपसे पूछा कि 101, जैसे आपसे पूछ लिया मान लो 101 की पावर 55 कितना होता है, ऐसा किसी ने पूछ लिया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 100, है ना, ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 100 और इसमें से 100 कॉमन ले लो। 1 प्लस 100 की पावर 55 लिख सकते हो ना ऐसा, और इसमें 100 कॉमन ले लो। 100 कॉमन ले लेंगे तो 100 की पावर 55 तो बाहर आ गई, और इधर क्या आ गया 1 प्लस 1/100 की पावर 55। नहीं बनता तो बनाओ, बाइनोमियल बनाओ, इजी होगा। अब ये क्या है 0.01, अब बाइनोमियल लगेगा क्या, इस लगेगा, इसमें लगेगा, और ये 10 की पावर 110 हो जाएगा, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 55, ठीक है। तो बनाना पड़ेगा, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बाइनोमियल की हेल्प से बड़े इजीली हो सकते हैं, अदरवाइज इनका कैलकुलेशन करेंगे बड़ा लेंथी होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी बाइनोमियल लगा दें आप पहले चेक करें, क्या चेक करें कि x लेस देन 1 है क्या ये वैल्यू। और बाइनोमियल सिर्फ इतना नहीं होता है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए इतना काम देगा, आगे भी होता है x स्क्वायर आता है, x क्यूब आता है, लेकिन क्योंकि x ही बहुत स्मॉल है तो x स्क्वायर तो और स्मॉल हो जाएगा, x क्यूब और स्मॉल हो जाएगा, इसलिए हमने फर्दर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया। अभी हमारा काम इतने से चल जाएगा। चलिए, आई होप कि ये बाइनोमियल कैसे लगाना है, कब लगाना है, क्या होता है, क्या यूज है इसका, ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बाइनोमियल लगा देते हैं। तो फिलहाल ये हमने मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें समझी हैं। बाइनोमियल लगा रहे हैं, इसमें 1 प्लस माइनस जो भी है, प्लस होगा माइनस होगा सब में लगेगा। तो हम इसमें बाइनोमियल लगा देते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इक्वल्स टू ये 1 प्लस माइनस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डेल a अपॉन a, यहां बाइनोमियल लगाना है। तो ये क्या है 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस nx। तो लिखिए 1 प्लस माइनस, ये जो प्लस माइनस है वो तो एज इट इज है, n कितना है -1, यहाँ n कितना है -1, तो 1 प्लस nx लिख रहे हैं और इसके साथ क्या लिख दिया है डेल b अपॉन b, 1 प्लस nx। जो भी बीच में साइन है उसको तो प्लस है माइनस है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, उसको रहने दो, या माइनस भी हो सकता था, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। यहाँ माइनस भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको क्या करना है 1 बीच में जो साइन है इट इज nx। ओके, ये हमने कर लिया। तो ये वाला जो ये हमारा टर्म हो गया 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इनटू, अब ये माइनस को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस प्लस डेल b अपॉन b, ठीक है। ये प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। तो देखिए, आप प्लस माइनस लिखिए या माइनस प्लस लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। कैसे एक ही बात है, जैसे हम 7 प्लस माइनस 5 करते हैं, 7 प्लस माइनस 5 करते हैं, या फिर 7 माइनस प्लस 5 करते हैं, बात तो एक ही। तो प्लस माइनस लिखिए, माइनस प्लस लिखिए, दोनों साइन इंक्लूड करने ही करने हैं आपको। तो इसका मतलब क्या है, इसके दो वैल्यूज आएंगे, 7 प्लस 5 12, 7 माइनस 5 2, दो वैल्यूज ये देगा। अच्छा, ये भी दो वैल्यूज देगा,
7 माइनस 5 2, 7 प्लस 5 12। तो दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग है, एक ही है। तो आप प्लस माइनस लिखिए, माइनस प्लस लिखिए, सेम बात। तो आगे से अगर आप इसको माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस भी रहने देंगे तो कोई इश्यू वाली बात नहीं, क्योंकि 1 में एक बार इसको ऐड करना है, 1 में से एक बार इसको सबट्रैक्ट करना है, दोनों में यही केस है, सेम। ओके, अब वही काम करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमने प्रोडक्ट में किया था। ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b एंड प्लस माइनस डेल a अपॉन a इनटू डेल b अपॉन b। ये टर्म बहुत स्मॉल है, सो इसको हम क्या कर देंगे, फिर से नेग्लेक्ट, इसको हटा देंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली प्लस माइनस डेल z अपॉन z दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। प्लस माइनस भी आप आमने सामने कैंसिल कर सकते हैं, तो डेल z अपॉन z दैट इज इक्वल टू डेल a अपॉन a। रिजल्ट तो वही आना है, रिजल्ट वही आना है जो प्रोडक्ट में आया था। फिर से अगर हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हैं तो उनके एरर का क्या होगा। सो एरर, रिलेटिव एरर इन डिवीजन दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ टू क्वांटिटीज व्हिच डिवाइड। जिनको आपने डिवाइड किया है उनका रिलेटिव एरर निकालिए, उनको ऐड कर देंगे, तो डिवीजन में जो रिलेटिव एरर आएगा, रिलेटिव एरर आएगा, तो फिर से वापस से क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर्स ऐड होती हैं। कौन सी एरर्स ऐड होती हैं, एब्सोल्यूट एरर्स। उसको कैसे लिखेंगे, डेल z, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, डेल z इक्वल्स टू डेल a प्लस डेल b। ये क्या है, एरर और डिफरेंस, किसका, a और b का। तो a और b के सम और डिफरेंस में एरर कितना आएगा, डेल z, वो किसके इक्वल होगा, एब्सोल्यूट एरर ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ b। तो एरर ऐड होता है यहां पे इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द रिलेटिव एरर्स आर एडेड। तो थंबनेल बना लीजिए, ये डेरिवेशंस कम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हमने क्या थंबनेल बना लिया कि एरर ऐड होंगे ऑलवेज। सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ नहीं होते, एरर क्या होते हैं, हमेशा ऐड। ओके, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं दो क्वांटिटीज का, तो एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे। दैट्स इट, इतना आपको ध्यान रखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो ठीक है, ये चीजें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा आप पेन पेपर यूज करेंगे, आप इसको खुद से बैठ के लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।